Hello everyone. Let me tell you that how you should be going ahead regarding your AIB का exam, because जैसे ही exam pass आ रहा है, many students are there who are getting panic attack. So let me tell you what you should be doing and what you should not be doing during these few days, which are very crucial. क्योंकि अगर एग्जाम के पहले जो चंद दिन बचे हैं, if you'll be utilizing it in a very proper manner, then that will reflect you in form of your result, so that there is no point thinking for another exam, I mean another chance of giving this exam. So let me tell you how positively you'll be utilizing these few days before your AIB ka exam, so that you come with flying color. There are some golden rules for qualifying any competitive exam, or I believe after your graduation in law is done, this might be your first competitive exam. So let me tell you what are that golden principle which you need to follow, and if you will be following it, success rate will be very high. किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का there are some golden principle, and out of those golden principle is the first and the foremost principle is decode the syllabus. Every exam has a particular pattern and particular syllabus has been specified for that exam, so you have to decode the syllabus. And when you will be decoding the syllabus, तो आप देखोगे in that 19 subjects has been written. तो क्या आपको 19 subjects सब पढ़ने हैं in the same zeal? Answer is absolute no. If you'll be perusing your notification, तो वहां पर 19 subjects has been mentioned along with their contribution towards the marks in the exam. तो वो subject जिनका ज्यादा होल्ड है with respect to the exam, that को I am calling it as the major law. तो आप देखोगे कुछ ऐसे laws हैं like the supreme law of land of India, that is the constitutional law, that is of 10 marks. If you'll be seeing the criminal procedure code of 1973 along with the new one Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, that is also of 10 marks. If you see civil procedure code, that is also of the 10 marks. And if you see substantive penal law, that is the old law of IPC, and the new law of Bharatiya Nyaya Sanhita, that is of 8 marks. Similarly, if you see Indian Evidence Act and the new law of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, that is of 8 marks. And there are few subjects which only contributes towards 2 marks in the exam. Like there are few subjects like environmental law, जिसका केवल 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा. It could be company law, which again they are asking only of 2 marks, or it could be cyber law. So these are the few subjects which I have taken from that 19 subject to make you understand how you will be deciding कि आपको पहले पढ़ना कौन सा सब्जेक्ट है. Out of these subject, जिसका मार्क्स ज्यादा है towards your exam, which I am calling it as the major law in that respect. For example, सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट्स को करोगे which is of 10 marks. For example, constitutional law, CRPC, as well as the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, or it could be the CPC, civil procedure code. Along with that, you can choose फिर दूसरे कैटेगरी में जो आ रहे हैं, that second hierarchy में towards marks. This major law is only with respect to the quantum of marks का question which is there in your exam. IPC and BNS का they are asking of 8 marks. Indian Evidence and BSA का they are asking of 8 marks. And there are few subjects जिसका केवल 2 marks का contribution है. Some are there which is of 4 marks. तो सबसे पहले your
object should be to complete those subjects which are of 10 marks, then of 8 marks, and whole of the day का you will be planning in such way कि पूरे दिन में आप इन मेजर लॉस को पढ़ोगे, and only for half an hour or maximum 1 hour you will be giving time to these minor laws. Minor law in that sense कि they have less contribution towards the quantum of marks. So decoding of syllabus will tell you कि किस subject को कितनी priority देना है. It is not that you are reading environmental law, आपको अच्छा लगता है and you are reading in that sense. It is BNS, which is very dear to all of the students. So it is not that every time you are only reading BNS. You have to read other part of the syllabus also. So whatever is mentioned in the syllabus, that all subject is to be covered, but not with same zeal. तो जिस सब्जेक्ट का जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसको आप पहले कवर करोगे, and then that subject is done, then you can think of the minor laws. So this is about decoding of syllabus, जो मैं बता रहा है कि पहले पढ़ना क्या है. Then second golden principle of qualifying the exam is to analyze the PYQ. PYQ stand for previous year question paper. When you analyze the previous year question paper of AIBE का exam, तो आप देखोगे every 2 to 3 years they used to change the pattern. इसीलिए आपको reverse order में question paper को देखना है. You have to see the question paper in the reverse order. It means पहले आप AIBE 20 का question paper देखोगे, then you go for seeing AIBE का 19 का question paper. And by perusing those question paper, you'll get to know कि they are asking question in two category. It is not that कि BERAC का index आपको पता है, उससे you will qualify the AIB का exam. This is unfortunate, but this is true fact कि last time there were many aspirants. Unfortunately, they were not able to make out the AIB का exam. The success ratio, if you compare last year, was very less with respect to the number of forms which were filled. ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे बहुत पहले पूछते थे कि अंडर विच आर्टिकल इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट द यूनियन का एक्सिक्यूटिव पावर विल वेस्ट इन प्रेसिडेंट, इज इट आर्टिकल 53? वन कैन वेरी इजीली लोकेट, अगर उसको पता है कि हाँ बैरक देखकर इंडेक्स से हम पता कर सकते हैं कि दिस इज सेक्शन 53 बाय मेयर रीडिंग ऑफ द बैरक. बट व्हाट अबाउट दोस क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल पूछा गया है, लाइक लास्ट टाइम दे हैव आस्क्ड applied question on section 62 of the BNS. कि suppose for any offense maximum punishment is 10 years, then what would be the punishment for the attempt to such offense as per section 62? तो जिसको 62 पता होगा कि it is about residuary attempt, it covers attempt to those offenses which are not covered in any of the other provision of the BNS, and it says that अगर कोई इंसान ऐसा ऑफेंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है which is not punishable under the BNS and that is punishable with life imprisonment or with imprisonment, it means for death sentence को ऑफेंस नहीं होना चाहिए, then in that case maximum amount of punishment is 1/2 of the life imprisonment, or it could be 1/2 of the maximum imprisonment which has been provided for that offense. तो दिस इज, और इट कुड बी द फाइन और बोथ. तो सवाल इस पार्ट पे था कि जो मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट है उस ऑफेंस की उसका 1/2 मिलेगा. तो अनलेस यू नो कि 1/2 करना है 10 का एंड इट विल बी द 5 years which will be the answer, you're not able to mark it correctly. Another question last time they have asked regarding the limit of solitary confinement. तो section 11 of the BNS give us कि what is solitary confinement. जैसे हमने कोविड के बाद क्या किया था, सोशल डिस्टेंसिंग. In same way, the concept of solitary confinement, a form of punishment, lies under substantive penal law, जिसमें हम prisoner को completely isolate करते हैं from any inmate so that he could have no human contact with any other inmate or jail का staff. That is called as solitary confinement. लेकिन what is the limit of executing it? क्या एक बार में मैक्सिमम केवल 14 दिन देंगे और फिर जितने दिन हमने solitary confinement दिया उसके हम मिनिमम उतने डेज का इंटरवल भी देंगे? आंसर इज यस. तो दिस वे दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन सेक्शन 12 of BNS.
सपोज अ पर्सन इज केप्ट फॉर 7 years, सॉरी 7 days का solitary confinement. तो व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट जिसके इंटरवल हमें देना ही पड़ेगा टू दैट प्रिजनर? इट इज मिनिमम ऑफ 7 days का इंटरवल हमें देना ही पड़ेगा. इट कुड बी मोर देन इट, 8 दिन का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है. देन another tenure of solitary confinement will come. लेकिन एक बार में मैक्सिमम दे कितना सकते हैं? That they have asked. It is 14 days at a time. तो ये 14 दिन has been mentioned in the section. So if you know to read the barrack and to locate it, it is easy for you to solve this question. The question paper will tell you that nowadays they are asking question in two head. One is very factual question. फैक्चुअल क्वेश्चन से आई मीन इट इज डायरेक्टली बैरक बेस्ड. इफ यू नो कि हाँ दिस इज द बैरक, आप आसानी से लोकेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दे आर आस्किंग दैट अंडर विच सेक्शन एडमिशन हैज बीन डिफाइंड अंडर बीएसए. आपने इंडेक्स देखा और तुरंत लोकेट कर लिया, इट इज सेक्शन 15 ऑफ द बीएसए. लेकिन अगर जैसे लास्ट टाइम पूछा है रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशन, दैट इज द क्वेश्चन वाज देयर ऑन सेक्शन 19. तो जिसको ये नहीं पता होगा कि एडमिशन की एडमिसिबिलिटी के लिए फर्स्ट वी सी इज इट सेल्फ सर्विंग एडमिशन और सेल्फ हार्मिंग एडमिशन, दैट पर्सन माइट गेट स्टक्ड इन दैट क्वेश्चन. बिकॉज अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन विच दे आर आस्किंग इन योर AIB इज conceptual question. Obviously both are BERAC based only because this is the open book exam in which BERAC is allowed. But there are certain things which you need to keep in your mind while carrying BERAC. The first and foremost thing is that BERAC must be your own BERAC. ये नहीं कि आप बोरो कर रहे हो किसी से, लास्ट टाइम आप पैनिक कर रहे हो. और योर BERAC शुड बी सच कॉपी जिसमें आपने कुछ मेंशन नहीं किया है. बिकॉज नॉर्मली व्हाट टेंडेंसी वी ऑल हैव बीइंग अ लॉ एस्पिरेंट कि वी यूज्ड टू राइट एवरीथिंग. लीडिंग केस लॉज लिख देते हैं. वी यूज्ड टू राइट सेक्शन 9 अगर BNS पढ़ रहे हैं तो हमने लिख दिया कि देयर इज अ मैक्सिम on which this section is based. It could be a case we used to write yes or no. Yes, tort पढ़ रहे हैं तो हमने maximum लिख दिया. Suppose we are reading vicarious liability तो we used to write yes it is about tort is an uncodified law. Suppose you are revising तो we used to write ना yes it is based on maximum that respondent superior or qui facet per alium facet per se. और when we are reading 525 of the BNS तो वही लिख दिया nemo judex and causes हुआ. तो अगर मान लो अपने बैरक में लिखा है 525 ऑफ द BNSS पे नीमो जुडेक्स एंड कॉजस हुआ व्हिच मींस नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, तो दैट बैरक विल नॉट बी अलाउड. तो पहले तो आपको ये इंश्योर करना है कि द कॉपी ऑफ द बैरक व्हिच यू आर गोइंग टू टेक इन द एग्जाम दैट मस्ट बी द नीट वन. नीट इन द सेंस इट शुड नॉट कंटेन एनी मार्क इन दैट. आपने उसमें कुछ लिखा नहीं होना चाहिए. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इट मस्ट बी विदाउट एनी कमेंट्री बिकॉज नाउडेज मार्केट में देयर आर मेनी बैरक विद कमेंट्रीज इन इट. कमेंट्री वाली बैरक इज नॉट अलाउड. और आजकल तो ऐसी पब्लिकेशन है जो कंपाइलेशन देती है ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट इन वन कॉपी दैट यू कैन परचेज. या कोई भी कॉपी विच यू आर थिंकिंग टू टेक इट बाय इट नाउ, उसी से आपको प्रैक्टिस करना है. ये नहीं कि एग्जाम के पहले आपने बोरो कर दिया और फिर बाद में रिटर्न पॉलिसी में उसे रिटर्न कर दिया. तो नए के साथ एक्सपीरियंस नहीं करना है. बिकॉज इफ यू आर acquainted with that BERAC it will help you in the exam. तो टेक द कॉपी ऑफ द BERAC which you have to take it. ये पहला रूल है टुवर्ड्स टेकिंग योर AIB का एग्जाम. लेकिन जब आप सॉल्व करोगे PYQs डोंट मार्क इन दैट. कुछ भी मार्क नहीं होना चाहिए. तो whatever question they are asking, be it factual or conceptual, it is BERAC based. तो आप करोगे कैसे? स्टूडेंट को we classify normally in two category. Let it be category number A. कैटेगरी ए वाले वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पूरी पढ़ाई कर रखी है. इट मींस दे हैव कवर्ड ऑल दी 19 सब्जेक्ट. खुद से किया है, किसी मेंटर की हेल्प लिया है, किसी इंस्टीट्यूशन की हेल्प लिया है और कॉलेज से ही दे आर प्रिपेयरिंग. तो बाय एनी सोर्स दे आर डन विद द सब्जेक्ट. तो व्हाट दे हैव टू डू, दे ओनली हैव टू रिवाइज द कंटेंट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड दे ओनली हैव टू शिफ्ट इन सॉल्विंग द मॉक्स. क्योंकि एज दे नो द कंटेंट तो इनको
मॉक्स पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। और सबसे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इट शुड बी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टूडेंट्स, भले आपने कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। यू डोंट हैव टू स्टार्ट टेकिंग एमसीक्यूज फर्स्ट या कोई मॉक ले लिया आपने, नहीं। सबसे पहले यू हैव टू बिगिन योर प्रिपरेशन with the PYQs. PYQs means previous year question paper which they have asked earlier in the AIB ka exam, because that will give you a clear picture of the question paper ka what they are asking, how depth में they are asking a topic, क्या सेक्शन नंबर पढ़ने से काम चल जाएगा, केस लॉस पे आदर आस्किंग या एक भी क्वेश्चन नहीं आया उस पे, इलस्ट्रेशन पे भी दे आर आस्किंग, क्या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इज देयर, एसेशन रीजनिंग इज आल्सो देयर, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में है, दे आर आस्किंग कौन सा ट्रू है कौन सा अनट्रू है। So that real picture of the question paper will be there when you see the PYQs only. Because mocks many time it has been prepared with a higher level, so that कि आपको अगर tough से tough paper भी आया ना, you will be in position to solve it. So start your preparation with solving PYQs. That you have to start with in the reverse order. Last year के पेपर सबसे पहले आप solve करोगे, then go for seeing उससे पहले का, and after solving PYQs, now you can take MCQs and now you can take mocks, as many as you can. So category A students, as they are done with the subject, so quick revision they have to do in a shorter span of time. मान लो उन लोगों ने IPC BNS का general section ले दिया, which was there under chapter 4 of IPC from section 76 to section 106. Now it has been given in the chapter 3 of the BNS from 14 to 44. तो superficially सारा पढ़ लिया, फिर उसके बाद solve questions on it, and you have to solve the question in the same manner as you'll be doing in the examination hall. Put a stopwatch and do keep your barak, do keep the question paper and solve it. ये नहीं कि आराम से आपने 4 घंटे 5 घंटे में 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, नो, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन इशू। लास्ट टाइम का पेपर आप देखोगे तो दैट इज अ लेंथी पेपर ऑल्सो। कुछ बच्चों का तो इस वजह से ही नहीं निकल पाया बिकॉज दे वर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। So I'll tell you कि time management, which is an issue nowadays regarding your AIB का exam, how that is to be managed. So this category A only have to shift on mock, and they have to practice in the same way as they'll be doing in the real exam. Now come to category B student. ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मान लो कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, या हो सकता है सब कोशिश करी हो कुछ याद ना हो. It means somehow they are not able to complete the subject. We are not going into the history कि क्यों सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ. तो वो बच्चे जिनका अभी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, नाउ दे विल नॉट स्टार्ट रीडिंग न्यू थिंग्स नाउ कि बुक लेकर आ गए एंड नाउ दे आर गोइंग टू डेवलप द कॉन्सेप्ट. नाउ इट इज टू लेट टू स्टार्ट विद द टेक्स्ट बुक बिकॉज टाइम इज वेरी लिमिटेड. ये बात सच है कि टाइम कम है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि still there is a time. Still there is a time. If you decide it religiously and you will follow it like anything, you'll qualify it. तो ये वाले बच्चों को जिनका for any reason subject has not been completed, they have to adopt reverse technique. Reverse technique means they have to only shift on question paper solving. इन्हें भी सबसे पहले PYQs ही solve करना है. और PYQs जब आप solve करोगे, suppose करो 62 पे last time question आया था, तो do read it. बेरेट आप रखो और पूरा 62 आप पढ़ लो कि कैसे वहां पर 10 ईयर पूछा और 5 साल हुआ रहा है. हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो, यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. तो उस केस में इफ देयर इज समबडी एल्स, आपका सीनियर हो सकता है, आपका क्लासमेट हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, या इट कुड बी अस बीइंग अ इंस्टीट्यूशन, तो आप किसी भी मैकेनिज्म से, किसी भी सोर्स से उसे आप क्लैरिफाई जरूर करो कि ये कैसे सही हो रहा है. इफ यू नो द कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा देन इट इज वेरी फाइन. लेकिन एज वी आर टॉकिंग अबाउट बी कैटेगरी स्टूडेंट, तो हो सकता है उसने नहीं पढ़ रखा हो. तो आस्क विथ एनी पर्सन who is well versed in that particular subject or topic. If you have nobody to help it out, you can take the help of institution. Even Drishti Judiciary have a course for AIB exam. We do provide recorded lectures के form में course in which all the subject is taught. आप उसे सुन सकते हो in high speed. You can listen to 2x speed. रटना नहीं है. That will tell you कि ये है क्या. फिर उसके बाद you can practice the question. So you can take help of any source, be it us
so that your subject is completed in a very fast speed. अभी आप खुद का ओपन करके बुक और खुद डेवलप करने का, यू कैन डू इट, बट ये तब कर सकते हैं जब आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का टाइम हो. नाउ इट इज टू लेट टू स्टार्ट विद दैट मेथड. सो शिफ्ट टू ओनली सॉल्विंग क्वेश्चंस in MCQs form. And again, first of all, PYQs is to be solved. और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इफ दैट इज कोडिफाइड लॉ, तो तुरंत उस सेक्शन को पढ़ लोगे. 62 है बीएनएस का, you'll be reading it. सेक्शन 19 ऑफ द बीएस they have asked, do read it, ताकि वो क्वेश्चन पूरा तो रिपीट होगा नहीं. ऑब्वियस है कि पीवाईक्यू से सब कुछ तो रिपीट होगा नहीं, तो अगर उसके ऊपर नीचे भी पूछे तो you'll be able to mark it. तो you have to make the PYQs as your source. आंसर मगअप नहीं करना है. You need to read the explanation why that answer is correct. It could be any solved MCQs का book, वहां से आप explanation ले सकते हो, या you can take up any help of any mentor, any course, anything, so that it is understandable by you कि how this option is correct. So after solving PYQs, you have to go for solving MCQs. You have to take as many mock as you can. लेकिन मॉक या पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करोगे एग्जैक्टली इन द एग्जामिनेशन पैटर्न में, इट्स प्रेफरेबल दैट यू सिट ऑन टेबल चेयर, कीप द क्वेश्चन पेपर, डोंट कीप एनी थिंग्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, कि बीट योर स्मार्टफोन और एनी गैजेट. कीप द नॉर्मल वॉच, और इट कुड बी अ वॉल क्लॉक इन योर रूम. कीप अ स्टॉप वॉच जो आपको टाइम बताता रहे, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन इशू. बहुत सारे बच्चों का, एज आई टोल्ड यू, दे फेल्ड by the mere reason that they were not able to complete the paper, even though they were knowing the content. So how to manage the time, ये सारे बच्चों के लिए, be they are falling in A category or B category, you have to solve the whole of the paper in 3 round. और ये उनके लिए भी जब आप PYQs पढ़ोगे तभी भी, I'm telling you how you'll be managing the time, because that is one of the important factor to qualify exam, be it our AIB का exam. तो पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को you'll be solving in 3 go. आपने इंश्योर कर लिया, इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, पेपर देख लिया कि इट इज प्रॉपर, देयर इज नो टैम्परिंग, नो पेजेस इज मिसिंग. फिर उसके बाद स्टार्ट विद द सब्जेक्ट इन विच यू आर मोर कॉन्फिडेंट. मान लो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत आता है, यू कैन बिगिन विद दैट. मान लो टॉट आपको बहुत आसान लगता है एंड इट इज वेरी डियर टू योर हार्ट, स्टार्ट विद टॉट. तो जिस भी पोर्शन के साथ, जिस भी सब्जेक्ट के साथ यू आर मोर कंफर्टेबल, इन विच यू हैव मोर कॉन्फिडेंस, बिगिन विद दैट सब्जेक्ट. और उस सब्जेक्ट में भी सपोज दे हैव asked 6 क्वेश्चन ऑन टॉट, 8 क्वेश्चंस मान लो पूछा है, एंड आउट ऑफ दोज 8 क्वेश्चन ओनली 6 क्वेश्चंस आर देयर इन विच यू आर श्योर दैट कि यही आंसर सही होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिगिन विद द पोर्शन इन विच यू आर कॉन्फिडेंट, इन विच योर इंटरेस्ट इज देयर, और उसमें से भी पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन विच यू आर प्रीटी श्योर कि इसका यही ऑप्शन होगा. Don't read the question in haste, because there is no extra time given और पेपर लेंदी ही आ रहा है, तो इससे बचा कैसे जाए. Amicable solution is कि whenever you are reading the question, do read the question twice. पहले तो एग्जाम में पैनिक होके नहीं जाना है. Take a deep breath, don't bother about the consequence. हाँ, मेहनत करते रहना है. Don't think कि क्या होगा, this much money will be wasted, टाइम भी चला जाएगा, 3 years प्रैक्टिस रूल भी लग रहा है, I'll be delayed by that much time. Don't think about the consequence. Only focus on solving too many PYQs as you can and do work on your mistake in which you are stucking at. तो आपको करना क्या है, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे. 2 बार पढ़ने से क्या होगा, इट विल बी क्लियर. सपोज दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्विटेशन टू कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन मान लो यू हैव टू मच थिंग गोइंग इन योर माइंड, कि इस बार नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, whether I have to take a job because financial constraint is there, मम्मी की भी तबीयत खराब है, what will happen, I'm not good enough in the subject. Don't think anything, otherwise that will hamper your performance. सब अच्छा होगा. Think positive, positive result will also come. But if you think negative, nobody knows, it could be the consequence. इसीलिए be positive, think positive, but don't be a daydreamer कि बस बैठ के सोच रहे हो कि I'll be getting good rank.
I'll be qualifying it. You have to work for it. तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे, जो पूछ रहा है उसको क्वेश्चन में ही अंडरलाइन कर लोगे कि नॉट पूछ रहा है या सही पूछ रहा है या वॉट एवर दे आर आस्किंग, देन यू गो फॉर रीडिंग द आंसर. अब जब क्वेश्चन पेपर देखोगे PYQs, तो यू विल कम टू नो कि ऑप्शंस आर वेरी क्लोज और आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है. तो इसीलिए सारे ऑप्शंस को, सपोज लाइफ इम्प्रिजमेंट इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस. आपने यस पहला ऑप्शन पढ़ा, तुरंत मार्क कर दिया, दैट इज ट्रू ऑल्सो. लेकिन उससे बेटर ऑप्शन हो सकता है, वेट कर रहा हूं नीचे, इन द अदर ऑप्शन इट इज ट्रू एंड इट मीन्स फॉर द होल ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑफेंडर ही हैज टू इनसाइड द प्रिजन. तो ये बेस्ट ऑप्शन हुआ ना. तो इसीलिए सारे ऑप्शंस को you have to read twice and then you have to think and then you have to mark, even though you know the answer. जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है और सारे ऑप्शंस को you have to read twice and then you have to mark it. तो पहले राउंड में आप उन क्वेश्चंस को करोगे beginning with that subject in which you are more confident, जिसका आंसर का you are sure. फिर दूसरे राउंड में you will be सॉल्विंग दोज क्वेश्चन जहां पे 50-50% का केस है, मतलब 2 ऑप्शन आपको आते हैं, 2 यू नीड टू थिंक इट. जो दूसरे वाले क्वेश्चन है उसको आप मार्क करके आगे बढ़ जाओगे. जैसे आई हैव टेकन कि 8 क्वेश्चन में से 6 को आपको आता है, यू सॉल्व इट. और दूसरे सेट पे अभी नहीं जाओगे, दिस विल बी डूइंग विद एवरी सब्जेक्ट. सपोज यू हैव बिगिन विथ एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसका आपने 6 क्वेश्चन कर लिया 8 में से. फिर आप दूसरे पे जाओ, सपोज इट कुड बी BNS एंड IPC, फिर इट कुड बी टॉट. तो ऐसे सारे सब्जेक्ट का पहले कर लेना है. और जब आपने पहले गो का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सपोज आउट ऑफ 100 यू हैव सॉल्व 50 और 40 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ योर स्टडी एंड द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर. तो जितना भी आपने किया है आउट ऑफ द होल ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स, उसका आपको मार्क कर लेना है आंसर. देयर आर 2 वेज ऑफ मार्किंग द आंसर. एक होता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तुरंत मार्क कर दिया, बट आई नॉट रिकमेंड टू फॉलो दैट बिकॉज समटाइम इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग और टाइम कॉन्स्टेंट होगा आपके एग्जाम में. दैट इज अ वेरी ट्रू फैक्ट. उसे हमें मैनेज करना होगा वेरी प्रॉपरली, अदरवाइज थिंग्स कुड बी डिफिकल्ट. तो बेटर है कि व्हेन फर्स्ट राउंड ऑफ paper solving is done of all the subject, do mark those answers so that is logged for you कि उतना क्वेश्चन आपका सही है. then you go for solving in the second go, और ये वो वाले क्वेश्चंस होंगे in which 50% you are sure कि ये आंसर सही हो रहा है, मतलब 50% का यू नो कि ये 2 ऑप्शंस तो नहीं है या ये दोनों हो सकते हैं. think because this will be time consuming question. फिर आप उस पर टाइम लो, सोचो एंड सॉल्व इट. आफ्टर सॉल्विंग सेकेंड वन, go for solving the third round of solving paper, क्योंकि वो क्वेश्चन होंगे जहां पर you have no guess. Suppose they are asking regarding the change which they have brought, कि क्या एडिशनल मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया जा सकता है ऑफ द अरेस्टेड पर्सन. आपको नहीं पता कि ये 52 में लिखा है कि 53 में लिखा है, कहाँ पे लिखा है BNSS में, क्योंकि ये प्रोवाइजो में लिखा है, वो आपको मिलेगा भी नहीं जल्दी. यू आर नॉट श्योर व्हाट टू बी डन. तो थर्ड राउंड ऑफ सॉल्विंग पेपर विल बी डन एट द लास्ट. इफ टाइम अलाउज, इफ यू हैव मार्क्ड एवरीथिंग, देन यू कैन थिंक ऑफ सॉल्विंग दैट. और तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देयर इज अ चीट कोड, बट दिस इज अ चीट कोड. इसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है फॉर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड ऑफ पेपर. चीट कोड क्या है? This cheat code helps for solving those question in which aspirant has no idea कि क्या सही होगा. एक तरीका तो ये है कि जब आप मार्क करोगे आंसर्स तो आपको पता चल जाता है कि आपके आंसर्स में कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही हो रहा है. इट कुड बी A, B, C, D. तो जो ज्यादा ऑप्शन सही हो रहा है, यू कैन टेक ब्लाइंड गेस ऑन दोस. कि जो नहीं आ रहा है, मान लो 10 क्वेश्चन आपको कुछ नहीं आ रहा है आउट ऑफ द होल क्वेश्चन पेपर, तो यू कैन मार्क A. हो सकता है 10 में से 3-4 आपके सही भी हो जाए, और इट कुड बी मोर देन दैट. सेकेंड चीट कोड इज कि जो सेट आपको मिला है, देयर आर 4 सेट्स ऑफ पेपर A, B, C, D. तो जो सेट पे आपको मिला है, A सेट, B सेट,
तो बी आप मार्क कर सकते हो सकता है 10 में से 2 क्वेश्चन आपके वहां से सही हो जाए। तो बट दीज आर चीट कोड, दिस यू विल नॉट बी अडॉप्टिंग फॉर सॉल्विंग होल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ये बस उनके लिए होता है जिसमें ब्लाइंड गेस देना होता है, जहां पर वी हैव नो क्लैरिटी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर क्या पूछ रहा है, दैट इज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द पीवाईक्यूज ऑल्सो। जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, तो इसी तरह करना होगा, क्वेश्चन 2 बार पढ़ना होगा, यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शन ट्वाइस, थिंक एंड देन सॉल्व इट। और स्पेशली मॉक व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, आप पूरे दिन भर को कैसे यूटिलाइज करोगे? इट कुड बी फर्स्ट हाफ जो आपने पढ़ने में लगा दिया, बीट रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर मिला उसको सुनने में, या पहले के कोई नोटबुक है या व्हाटएवर नोट्स इज देयर दैट यू हैव रिवाइज्ड। But mere revising or listening the lecture will never suffice the need of qualifying AIB का एग्जाम। आपको करना क्या है, which is another golden principle to qualify the exam, you have to solve PYQs। आपको PYQs solve करना है, तो पूरे दिन भर आप PYQs solve करो after revising the content। उसके बाद you keep time, और ये must है, which is a doable thing, जो must do thing है, that you have to solve mock, और at least try to solve 2 mocks a day। और जैसे जैसे एग्जाम करीब आता जाए, बिफोर 1 वीक ये 3 भी हो सकता है, या इट कुड बी मोर, होल ऑफ द डे में 3-4 लगा दिया, तो मॉक्स लगाना ही पड़ेगा। एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग मॉक, व्हाटएवर थिंग आई हैव टोल्ड, कैसे सॉल्व करना है 3 गो में, क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, ब्लाइंड गेस कैसे लगाना है, हाउ यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट ऑल मेथड यू हैव टू अडॉप्ट। वरना बच्चे क्या सोचते हैं, अभी ऐसे कर लेते हैं टाइम बढ़ा के, एग्जाम में ऐसा कर लेंगे 3 गो में, नथिंग हैपेंस इन एग्जामिनेशन। हो सकता है पहला क्वेश्चन ऐसा आ गया हो जो आपको समझ ही नहीं आ रहा हो, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसमें आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, यू हैव टू मार्क इट एंड यू हैव टू मूव अहेड। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि तुरंत नहीं समझ में आता है, लेकिन जब माइंड रिलैक्स होता है तो यू कुड रिकॉल द आंसर, ये कहाँ लिखा है। सो बेटर नॉट टू वेस्ट एनी टाइम, बिकॉज इफ यूल बी वेस्टिंग अ 5 मिनट्स, हो सकता है कि some difficulty might be there। तो better है to avoid any kind of wastage of time, wherever you are stacking, mark it, बाद में उसको सोचकर solve कर लेना if time allows। time allow करेगा if you'll be properly managing the thing, and it is the right time। stop wasting your time here and there। बेयर एक्ट को साथ में रखना है, लेकिन हाँ, बेयर एक्ट में कुछ लिखने मत लग जाना, it should be very neat enough as you have to take it to the examination hall। it should not be containing any commentary। जितने भी PYQs हैं उनको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। after completion of PYQs you have to shift on MCQs and taking mocks। or wherever you are stucking, do discuss with some person, don't feel shy, क्योंकि कई बार चीजें डिस्कस करने से भी क्लियर हो जाती हैं। you can ask with your mentor, you can ask with your friend, you can ask with your teacher, anybody who can help you out in this situation, because this is very crucial time। the way you will be utilizing it, that will reflect in form of your result। so paper lengthy hoga, but if you'll be managing very wisely, time management will not be an issue for you। and instead of asking somebody to give you stationary items, somebody to give you barack in the examination hall, don't do all those stuff, that kills the time। that sometimes ये भी तो जरूरी नहीं है कि जो आपको आंसर बता रहा हो वो गलत भी तो बता सकता है, and who knows, nowadays surveillance is tough, you will might be caught और आपके खिलाफ कोई एक्शन हो जाए। तो बेटर नॉट टू अडॉप्ट एनी अनलॉफुल एक्टिविटी। उसके लिए हमें पहले प्रिपेयर होना होगा। प्रिपेयर क्या करना है, वी ओनली हैव टू रीड इन दैट सेंस कि हमें पढ़कर either the reverse technique depending on the level of your preparation, or we are done with the subject, it is only solving mock। so you have to take the thing in that way। so this is how you have to manage your few days before your AIB का exam। take the bare act, डायरेक्ट बेसिस ही सवाल आएगा, बीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बीट द फैक्चुअल क्वेश्चन, बट रीड द होल। देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल व्हेन यू रीडिंग एविडेंस एक्ट एंड बीएस है तो चैप्टर 2 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, दैट इज टू इंपॉर्टेंट, उसे तुरंत पढ़ लो। तो देयर आर फ्यू की एरियाज, पहले आप उन सब्जेक्ट के वो एरियाज पढ़ लो और बिगिन विद दो सब्जेक्ट जिसका मार्क्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, देन गो फॉर रीडिंग द माइनर लॉज, बिकॉज यू कैन नॉट कंप्लीट एवरी 19 सब्जेक्ट विच इज देयर, that is next to impossible to be completed।
तो पहले आप मेजर लॉस को कंप्लीट करने का फोकस रखो. इफ दैट इज डन, यू कैन थिंक ऑफ सॉल्विंग. ये नहीं कि ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया. एंड वॉट एवर यूल रीड फॉर अ डे, डू रिवाइज इट. मान लो आपके मॉक में क्वेश्चन गलत हुए आज, तो डू मार्क इट विद अ हाइलाइटर और समथिंग, सो दैट कल के मॉक लगाने से पहले यू रिवाइज दोज थिंग. तो ये नहीं कि आप नया पढ़ते जा रहे हो एंड यू आर नॉट रिवाइजिंग द थिंग. फिर होगा क्या कि एग्जामिनेशन से पहले आप सब भूल भी सकते हो. तो वॉट एवर फ्लॉज आर देयर, या जो आपको नहीं याद आ रहा है, डू कीप स्टिकी नोट्स और डू हाईलाइट इट. लेकिन हाँ, वॉट एवर बी द मैकेनिज्म, यू नीड टू रिवाइज इट. आप बहुत सारे सोर्सेज रखते हो. डोंट कीप टू मेनी सोर्सेज. कीप योर सोर्सेज वेरी लिमिटेड. Revision should be unlimited. Do solve as many questions as you can, and if possible in the same manner as you will be doing in the examination hall, sitting on the table chair with the stop clock, with the stopwatch के साथ, with the same pen which you are going to take in the examination hall. ये नहीं कि घर में जेल पेन से मार्क कर लिया, पेंसिल से कर लिया. No. Whatever stationary item you have to take it. Write now. Take it now, so that you have practice with that. Because sometime you'll be borrowing pen, हो सकता है वो ना चले. It might kill 5 to 6 minutes of yours. आप पैनिक भी करोगे और वो आपका क्रूशियल टाइम वेस्ट हो गया. Who will pay for that time? So this is the thing what you have to do. नई कोई चीज अभी नहीं पढ़नी है. नोट्स बनाने नहीं लगना है कि आप यू हैव स्टार्टेड कि चलो बॉडी रिलेटेड ऑफेंस पे नोट्स बनाते हैं. नो, नॉट, देयर इज नो टाइम फॉर मेकिंग नोट्स, फॉर रीडिंग एनी न्यू बुक. Avoid looking to the textbook if you have not referred earlier. It is more about solving questions, questions, questions. And do analyze it कि अगर आपका कम स्कोर आ रहा है या सब गलत हो रहा है. Don't get demotivated. Still time is there. आप देखो कहाँ गलत कर रहे हो. क्या आपको सेक्शन नंबर याद नहीं आ पा रहा? क्योंकि क्वेश्चन तो दो काइंड में ही आएंगे. One will be factual, they'll be asking the section number, जो कि डायरेक्टली लोकेट हो भी सकता है बैरेक्ट से. And the second way is conceptual question. तो जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे by looking into the बैरेक्ट, that will make your habit. And still there is a time. जब आप पूरे दिन भर में if you'll be looking to the बैरेक्ट, तो जो बैरेक्ट की हैबिट है वो आपकी हर दिन इंप्रूव भी तो हो रही है. इसका मतलब लेस टाइम विल बी कंज्यूम. आपने कभी नहीं बैरेक्ट रेफर किया और अब एग्जामिनेशन में जाके रेफर करोगे सेक्शन 19 कहाँ लिखा है कि इट मे बी प्रूव्ड by on behalf of the person making it or by his representative in interest. You'll not be getting it. So better है practice with बैरेक्ट what you're going to take. So with all these tips and technique, I'm here and you can take our help also. As I told you previously also, we have a course planned for AIB exclusively where recorded lectures are there. You can complete it. We have mocks for it. You can take it. So it could be we, Drishti Judiciary, who can act as a catalyst in your preparation, or you can do it by any other mechanism. But prepare hard, be positive towards the exam. Don't waste time for any reason. Don't think too much. Overthinking will never bring the result. Think positive कि everything will be in your favor. But don't be a daydreamer. पढ़ाई करना है, solve करना है PYQs. You have to solve too many MCQs as you can. जितने marks लगा सको, it will be good for you. So this is how, if you'll be planning your crucial days before your AIB ka exam, so I hope your name will be there, which will be there in the final list. So good luck for your exam. Best wishes. Thank you.